اور اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے سیاستدانوں پر طنز کیا ہے۔ الطاف بخاری نے کہا کہ پیدل چلنا صحت کے لیے اچھا ہے اور عمر جوان ہے۔ عمر کے بارے میں کہا ہے، عمر عبداللہ کے بارے میں کہ عمر جوان ہے۔ بخاری نے مزید کہا کہ کچھ سیاستداں ایسے مواقع پر گھر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں۔ صدر سید الطاف بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الطاف صاحب، آپ کا خیر مقدم۔ پہلی بات یہ کہ 13 جولائی ہے تو کئی لوگ پیدل چل کے آفس پہنچے، آپ نے کیا کیا؟ نہیں صاحب، ہم تو گاڑی میں آئے اور باضابطہ وہاں سے اپنے دفتر تک آئے، ہمارے ساتھی بھی گاڑیوں میں آئے۔ اب یہ ضرور ہے کہ سرکاری گاڑیاں نہیں ملی ہوں گی، پرائیویٹ اپنی گاڑیوں میں آئے تو ضرور آئے۔ ایک بڑا احتجاج ہے کہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ شہداء مانے جاتے ہیں۔ یہاں کشمیر میں یوم شہداء ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں، مزار پہ جانے کی اجازت نہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے کافی ساری چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے انتظامیہ سٹیٹس کو کہتی ہے کہ یار جامع مسجد میں نماز نہ پڑھنے دو، کیوں؟ نہیں جی، وہاں لا اینڈ آرڈر پوزیشن ہو سکتی ہے، عید کی نماز پڑھنے نہ دو۔ تو اسی کی ایک یہ بھی کڑی ہم نے دیکھی ہے بڑے ٹائم سے، یا مولانا فاروق صاحب کو وہاں تک جانے، مسجد تک جمعہ کو جانے نہ دو۔ تو یہ مجھے لگتا ہے جو افسر یہاں بیٹھے ہیں، جو افسر اس وقت انتظامیہ چلا رہے ہیں، دے آر ہیپی کہ وہ کہتے ہیں یار اجازت ہی نہیں، یہی کرٹیسزم ہو کہ اجازت نہیں دی۔ باقی حالات، زمینی حالات تو ٹھیک ہیں، لوگ امن امان میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے، یہ ہم تھوڑا ہی بھول سکتے ہیں، وہاں جانے نہیں دیا، یہاں فاتحہ پڑھے، فاتحہ کہیں سے بھی پڑھ سکتے۔ احسال ثواب کے لیے دعا کی، اللہ کرے ان کو جنت الفردوس میں جگہ ہو، اور وہ جو ان کا مشن دکھایا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے وہ ایک روڈ میپ ہے۔ اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں، میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا، ہم تو حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، وہی انہوں نے بات کی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یوسف طارق عامی، جو سی پی آئی ایم کے لیڈر ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے اس پورے موضوع پہ۔ یوسف صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے نیوز 18 JKLH میں، اور میرا سوال یہ ہے کہ 13 جولائی یعنی یوم شہداء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، عمر عبداللہ نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے اجازت نہیں تھی اور ہم تو پیدل ہی نکل پڑے اور دفتر پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے بہت تنقیدیں کی ہیں LG پرشاسن پر۔ محبوبہ مفتی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر بند کر کے رکھا گیا ہے، میں جانا چاہتی تھی مزار شہداء پر۔ جی دیکھیے، جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے، جموں کشمیر کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں ایک عظیم دن، عظیم روایات لکھی گئی ہے آج کے ہی دن۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک نیا چیپٹر رقم کیا گیا خون جگر سے ہمارے شہداء نے۔ جی، اور موقف کیا تھا؟ موقف سلطنتیں بانٹنے کا نہیں تھا، موقف یہی تھا کہ ہمارے اس خوبصورت وطن جموں کشمیر اور لداخ میں شخصی راج نہیں چاہیے، عوامی راج چاہیے۔ ہمیں تانا شاہی نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے۔ اور یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ہماری ریسنٹ ہسٹری میں جو بھی تانا بہانا بنا ہے یا آج بھی موجود ہے جمہوریت کا، اس کی بنیاد، اس کی پہل ہوئی آج ہی کے دن 13 جولائی 1931 میں۔ اور آج سرکار بہت کچھ کہتی ہے، چرچا بہت کچھ ہے کہ امن قائم کیا گیا، یہ بھی چرچا ہے کہ ٹورزم روا دوا ہے۔ یہ سب باتیں مناسب ہے اپنی جگہ، لیکن ایک سوال ہے کہ مزار شہداء پر جانے میں قدغن کیوں؟ کیا یہ لا اینڈ آرڈر بہتری کی علامت ہے؟ کیا یہ امن قائم کرنے کی راستے کا ایک بڑا پڑاؤ ہے؟ میں حیران ہوں، اور آج کے زوما، ملک کے زوما، میں ان سے یہی گزارش بھی کر لوں گا کہ آئینے میں چہرہ دیکھنا ہے اور حالات کا جائزہ لینا ہے۔
जो उस वक्त हुआ 1931 को जी 13 जुलाई, वो रिवायात मुल्क के लिए बेहतर है, वो रिवायात समाज को संभालने के लिए बहुत ही मुफीद है। वो बल्कि ये कहना मुनासिब होगा हमारे दर्द का, हमारी बीमारी का इलाज रहा है। जी तो आज इसमें रुकावटें क्यों? और बल्कि ये अफसोस हुआ मुझे तब जी जब पहली बार आज के दिन इसकी अजमत को देखते हुए मुख्तलिफ सरकारों ने, अलग अलग सरकारें भी रही हमारे इस रियासत में, तब भी उन्होंने इसकी अजमत से इनकार नहीं किया और तातील रही, छुट्टी रही। लेकिन जब से 2019 में जो भी किया गया, तोड़ फोड़ किया गया, उसके बाद आज उसकी याद पर भी कदगन है, छुट्टी भी उस पर भी आज वो भी खत्म, इरेज किया गया। यूसुफ साहब मैं तो इस वजह से मेरी नजर में जी, आज भी क्या चैलेंज है हमारे सामने। बिल्कुल मैं मैं तालिब इल्म होने के नाते यूसुफ ये साहब कहूंगा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं दो बातें यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, उस पर जी हाँ। चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। अल्ताफ बुखारी से पूछा गया आज के दिन के बारे में और इस बात के बारे में कि वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो उनका कहना था कि फातहा खानी तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, इसाले सवाब के लिए वहां जाना जरूरी नहीं है, हम कहीं से भी कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, कविंदर गुप्ता जो डेप्यूटी एक मिनट डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं वहां के, उनका यह कहना है कि जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे और मारे गए, तो उनको आप शहीद कैसे कह सकते हैं? आपका रिएक्शन? दो बातें। पहले गुप्ता साहब से कहूंगा, एहतराम के साथ कहूंगा, मेरे कोलीग रहे हैं असेंबली में, स्पीकर भी रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में ये कहूंगा जिन्होंने ब्रिटिश डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भगत सिंह है, अशफाकुल्ला है, राजगुरु है, सुखदेव है, बहुत सारे जियाले हैं। कैसे नजर, किस नजर से देखते हैं उन शहदा को? और उन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप दर्स क्या दे रहे हैं गुप्ता साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को? यहां बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं, नेता पैदा हुए हैं, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर सर उठाकर जीने की खातिर काफी मुश्किलात का, ये जम्मू की रिवायत रही है, ये सिर्फ कश्मीरियों की रिवायत नहीं है, ये एक फिरके की रिवायत नहीं है। वहां जम्मू में कितने ही बड़े सुरमा पैदा हो गए जी, जिन्होंने जेले और अताब सहा, लेकिन जमहूरियत की खातिर अपनी जिंदगी सरफ कर दी। तो आप उनको भी ताना देते हैं कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा। जागीरदारी निजाम का खात्मा हुआ, जम्मू को फायदा हुआ, काशकार को, कश्मीर को हुआ, लद्दाख को हुआ। जिन्होंने जागीरदारी निजाम के खिलाफ आवाज उठाई, आप उनको बागी कहेंगे? आप उनको कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा? हमें फख्र है और आज भी मैं बरमला ऐलान कर लूंगा, अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई भी गलत रास्ता चुने, अवाम के खिलाफ जाए, उस रविश को बदलना एक नेक काम है, बहादुरों का ही काम है। और इसीलिए आज ये फातेह खानी तो अपनी जगह पर अकीदा है, लेकिन इसके अलावा तारिगामी जैसा एक कारकुन उन्हें सलाम करता है। क्या आपने तब वो ख्वाब देखा जो आज भी मुझे रास आता है? वो जमहूरियत का सपना है, अवामी राज का सपना है। अल्ताफ बुखारी के स्टेटमेंट पर आपका रिएक्शन? नहीं साहब, अल्ताफ बुखारी साहब वो तो शायद उन्हें ज्यादा वाकफियत है इन मामलात की, लेकिन उनको कहिएगा कि एक बेटा बाप के कब्र पर जाए, जाकर फातेह खानी कर लें। ये कब से सबक मिलेगा हमें, कहां से मिला कि उसमें ममानियत कर लें, रुकावट कर लें? ये फातेह खानी मैं कहां कर लूं? अपनों की, अपने अजीजों की, अपने बुजुर्गों की, ये हक मेरा है। मैं कब्रिस्तान जाकर, अब अगर कब्रिस्तान जाकर फातेह खानी से भी हमारे हुक्मरान इतने खौफजदा हैं, कदगन करते हैं, माशा अल्लाह, फिर हासिल क्या किया? फिर ये इमारत कब तक इस ढंग से चलती रहेगी? ये सवाल है मेरा। जी,
यूसुफ साहब एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आपकी पार्टी आपकी अपनी जो रिएक्शन है वो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अभी हालात ऐसे हैं कि आप जो है यौम शोहदा के नाम पे जो भी कुछ तकारीब करना चाहते हैं या जो फातह खानी के लिए या जो भी करना चाहते हैं उस पर कुछ रोक लगानी चाहिए? महबूबा मुफ्ती लिख रहे हैं कि मुझे घर में कैद रखा गया है, यानी नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया इसके हवाले से, वो कह रही है मैं जाना चाहती थी वहां। उमर अब्दुल्ला कहना है कि मुझे जाने नहीं दिया गया। तो मैं कहता हूं जाने में क्या है, कहां जाना चाहते हैं? कब्रिस्तान पर जाकर वहां उन जियाले शहीदों को खराज अकीदत पेश कर लें, वहां फूल बरसाए निछावर कर लें, तो उससे डर क्या है? आज के हालात में क्या होगा? अगर डर नहीं है तो आखिर क्यों? देखिए आखिर क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है क्यों रोका जा रहा है? ये आखिर कविंदर गुप्ता साहब इसका जवाब देंगे। ये आखिर सरकार का कोई नुमाइंदा होगा, वो जवाब देगा। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और बल्कि मैं ये चाहूंगा, मेरा ये अकीदा रहा है कि जमहूरियत हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, इस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए यही एक दवा है जो हमारे मर्ज का इलाज है, जो रास आती है हमें। ये ताकत है हमारे देश की। इससे हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा और इससे हमारे अंदर जो जज्बा है अपनी जिंदगी का सफर तय करने का, आगे बढ़ने का, उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। और वही स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की, हमारे समाज की और हमारे रिवायात की। चलिए यूसुफ तारिक गामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKLA से बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो यूसुफ तारिक गामी ने अपने तौर पर इस बात पर प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से आज यौम शोहदा को लेकर जो अलग अलग बातें आई हैं, अलग अलग जो बयानात आए हैं, जो कविंदर गुप्ता का बयान है, जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, जो अल्ताफ बुखारी ने कहा है, इनको मिलाकर सब कुछ वो यही कहते हैं कि इनके मुताबिक उनका कहना है कि अगर हालात बेहतर हैं तो फिर आखिर किसी को रोके जाने का मतलब क्या हो सकता है। और इसी के साथ प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLA में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।